Hey, hi everyone. Am I audible? Yes, Akash. Yes, Akash. Okay. And how many of you are new students? Can you please raise your hand? कितने लोग नए हैं यहाँ पे अभी? 1 2 3 4 5. और कोई? ओके. ठीक है guys. All right. Down your hand please. So what we discussed in the previous class, guys? Jira. Jira. So in the previous session, we had a discussion on how to create a project from the scratch in Jira. Along with that, how to create the epics, and under the epics, how to create the stories. यही पढ़ा था या इसके अलावा भी कुछ था? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग? यस, लखन राजपूत, सूर्यांश, ममता. Can anyone tell me what is product backlog? Hey, Akash. So, can you hear me? Yes, yes. All right. So, the product backlog is the list, like we can say the prioritized list of all the features, like we are going to work on, and basically we use it when means we create the like product roadmap in Jira. Okay. Anyone else? What is product backlog? Product backlog is when we divide the project into small modules, and each module that is the when we create like each module is called a product backlog. I think the work that needs to be done. The work which needs to be done is known as the product backlog. Prioritizing the requirement, prioritizing the ticket. ठीक है, सब अपने अपने प्लेसेस पे सही है. So these all are the user stories under the which epic? कौन से एपिक के अंदर ये यूजर स्टोरीज लिखी हुई हैं सामने? User management. User management. So last time we have like a project. कौन सा project था? Learning management LMS project था हम लोगों के पास, and we break down this project into different epics. So the number first epic is user management. So under user management we get some is user stories, जैसे हमारा user registration, user login, user role management and the profile management. ठीक है. So first story I think already done. Move to the second part, that is user login. Yes guys, can you please help me about the user story of this user login? क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? बताओ जल्दी.
as a user, I want to log into the to apps so that I can like open the like my account. नहीं, और कोई? As a student, I want to log in into LMS so that I can access my course. As a student, I want to. Log in into LMS. क्या करूँगा मैं एक बार लॉगिन होने के बाद? So that I can access course material, assignments, marks. ठीक है, इसके बाद व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। Acceptance criteria. क्या होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? और सबसे पहला पॉइंट क्या होगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में अकॉर्डिंग टू दिस यूजर स्टोरी? The user must be able to enter valid email or username and password. ठीक है, और क्या होगा? System must validate credentials. सिस्टम मस्ट वैलिडेट क्रेडेंशियल्स, और क्या होगा? If the user enters invalid credential, then like the error message should be there. ठीक है, और क्या होगा? Successful login. सक्सेसफुल लॉगिन इज नॉट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। Reset password. ठीक है, देखो बहुत सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो सकते हैं, लाइक यूजर कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ देयर रजिस्टर ईमेल एंड फोन एंड पासवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अभी किसी ने बोला सिस्टम मस्ट वैलिडेट ऑल द क्रेडेंशियल्स, एंड उसके बाद लाइक इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट शुड शो एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको सीधा कॉपी करके आकाश, यस इसमें होम पेज का भी हो सकता है, लाइक यूजर मस्ट एबल टू सी द लॉगिन पेज एक्यूरेटली. सो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, so that I can access my LMS dashboard. ठीक है, ठीक है। हाँ या ना? Yes. Yes, yes. ठीक है, अब देखो, यू ऑलरेडी नो द यूजर स्टोरी कि यूजर स्टोरी एक्चुअल में क्या है। सो अब एज अ बिजनेस एनालिस्ट, इफ यू ऑलरेडी नो द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू ऑलरेडी नो द यूजर स्टोरी, देन उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वन बाई वन, पॉइंट नंबर 1 दिस, पॉइंट नंबर 2 दिस, पॉइंट नंबर 3 दिस। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट पता है तो यूज़ चैट जीपीटी, सीधी सी बात। ठीक है, इसको बोलो कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आर देयर? मतलब मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? बताओ भाई। 3. कौन कौन से? Scenario based, rule based, and test case. टेस्ट केस, टेस्ट केस कब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हुआ? ये वाला कौन सा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो मैं लिख रहा हूँ?
what type of acceptance criteria this? I think we already had a discussion on the acceptance criteria, guys, right? जब मैंने बताया था गिवन व्हेन देन उसके बाद पॉइंट वाला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, देन गिवन व्हेन देन होता है, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा कॉपी करो, कॉपी करने के बाद जीरा में जाओ एंड सिंपल पेस्ट, और कुछ करने की इतना ज़रूरत नहीं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद प्लीज़ नोट दैट एक एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ो कि हर एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुड बी मैच योर रिक्वायरमेंट। अगर नहीं कर रहा तो उसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद सीधा यहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर होगी। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज यूजर रोल मैनेजमेंट। क्लिक ऑन यूजर रोल मैनेजमेंट एंड click on this LMS 7. You will move towards the big page। तो यहाँ पे आप आ जाओगे। इसकी यूज़र स्टोरी क्या लिखूँ यूज़र रोल मैनेजमेंट की? बताओ भाई, फ्यूचर बिजनेस एनालिस्ट। As an admin, like I want to create, edit, As an and admin. yes, as an admin, Why admin? because the admin one will be the responsible to create the users, right? करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो एज एन एडमिन, उसके बाद As an admin, I want to create आई वांट टू क्रिएट, ये क्रिएट क्यों? user, right? ठीक है, क्रिएट यूजर्स, Create, edit, and delete users and their roles. नहीं, यहाँ पे हम यूजर रोल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट I want to क्रिएट। manage user profiles. So I think I want to assign roles to the user so that the permission are controlled properly. But Akash, like the creation of the users and like the deletion or deactivation will come under the role management, right? That's also all right, but वो दूसरी यूजर स्टोरी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें हम लोग खाली यूजर रोल की बात कर रहे हैं, यूजर क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, Okay. ठीक है। So I want to assign roles to user so that their so ठीक है, so that permissions are controlled। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों के पास एक्सेस है, आप लोग लिख लेंगे इसका। यहाँ पे मैं सीधा सेव कर दे रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पार्ट प्रोफाइल मैनेजमेंट। क्लिक ऑन प्रोफाइल मैनेजमेंट, क्लिक ऑन दिस LMS 8, यू विल रीडायरेक्ट टू द नेक्स्ट पेज। किसका प्रोफाइल? किसका प्रोफाइल? स्टूडेंट का। User. Students, parents. स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टूडेंट को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी एक ही बिजनेस ड्राइवर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन टेक केयर ओनली वन बिजनेस ड्राइवर, ताकि थोड़ा सा कियोस ना हो बिल्कुल भी। तो क्या लिखूँ फिर? प्रोफाइल मैनेजमेंट, लाइक स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द यूजर स्टोरी ऑन स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट? बताओ भाई। सही है गलत है? As I want to view and update the profile. अपडेट माई इन्फो हो गया, उसके आगे क्या लिखना है? सो दैट So that my like the information remains accurate.
और कुछ अच्छा सा, or up to date in the system. और कुछ? As a student, I want to view, update, and access my profile information so that my details and everything will check. My detail and everything will. My detail and every my details and profile and the modules in the profile stay in check. No. Anyone else? So that so that Student password and validity. नहीं 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 नहीं, पासवर्ड की बात ही नहीं आई है. So that my profile is updated. So that my profile is updated. Updated in the institute records. और कोई? बताओ गाइस, सोचो. So that it gives the latest information about me. So that It gives the latest information about me. it gives the latest information about me. Mhm. किसको दे रहा है इन्फॉर्मेशन? हम लोग किसको दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन? उसको देख तो मैं ही पा रहा हूँ, आई थिंक. So that it reflects my latest information. ठीक है, नीचे अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये आप लोग खुद लिख लो. ठीक है, मूविंग टू द बोर्ड. लेट्स क्रॉस दिस टैब एंड वंस रिफ्रेश द होल बोर्ड. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी हम लोग वी आर टेकिंग केयर अबाउट ओनली द वन एपिक. सो अंडर द वन एपिक वी क्रिएटेड ऑलमोस्ट 4 यूजर स्टोरीज. ठीक है, अभी तक हम लोग इतना ही करेंगे. सेकेंड एपिक अभी पूरा खाली है, थर्ड एपिक पूरा खाली है, फोर्थ एपिक अभी पूरा खाली है. अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट अब हम लोगों को यहाँ पे पता है कि वी हैव 4 यूजर स्टोरीज. ठीक है, हमारे पास 4 यूजर स्टोरी है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Task. टास्क और सब टास्क. Subtask. सब टास्क क्रिएशन कैसे होगा? सब टास्क क्रिएशन Akash sir, actually, I have a question. यस. Sir, last time when we created the epic was being shown in the place of filter. I think जहाँ पे अभी filter show रहा है, वहाँ से हम लोग ने epic create किया था. तो यहाँ पे आप क्लियर और कर लो. जैसे आप क्लियर और Okay. कर लो तो एक बार रिफ्रेश कर लो. अभी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे. ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी. एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको.
आई थिंक कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज हुई होंगी इन लोगों की। एक मिनट रुको। ओके सर। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें सही है। किसने यूज़ करा था क्या बोर्ड? किसी ने बोर्ड यूज़ करा था जो लोग यहाँ पे हैं? ममता, नेगी, रिचा। नहीं प्रकाश। I haven't used that. ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये छुपा हुआ था। सो हम लोगों ने क्या करा, पहले यहाँ पे आ रहा था, अभी ये यहाँ पे आ रहा है। इस पर क्लिक करो, एपिक पैनल है, क्लोज कर दो तो क्लोज हो जाएगा, ओपन कर दो तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस? हम लोगों ने यूजर स्टोरी क्रिएट कर दी है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स टू क्रिएट द सब टास्क। ठीक है, अब सब टास्क क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे, नाउ मूव टूवर्ड्स LMS8। Click on this LMS8, then you will redirect to the next page। और यहाँ पे there is an option सब टास्क। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सब टास्क का। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग सब टास्क क्रिएट कर सकते हो। क्या होगा प्रोफाइल मैनेजमेंट का सब टास्क? Design the profile page, because as a user if you want to change anything in your profile, so आपके पास जो है एक प्रॉपर प्रोफाइल पेज होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपनी चीज़ों को चेंज कर पाओ। सो हमने यहाँ पे द वेरी फर्स्ट सब टास्क अंडर द प्रोफाइल मैनेजमेंट इज डिज़ाइन द प्रोफाइल पेज। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा सब टास्क कोई बताएगा? प्रोफाइल पेज को डेवलप करना। प्रोफाइल पेज को डेवलप करना। और क्या हो सकता है? Develop the required search boxes to fill the information like name, address, and whatever the requirement is. अभी किसी ने बोला प्रोफाइल पेज को डेवलप करना। सो इन द टेक्निकल टर्म्स, implement the backend API for update। ठीक है, सो फॉर सब टास्क क्रिएशन या फिर टास्क क्रिएशन, डेवलपमेंट टीम विल हेल्प यू आउट कि कौन कौन से सब टास्क या फिर कौन कौन से टास्क बनेंगे। ठीक है, इफ़ यू नो तो आप बना लो, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द थिंग्स देन यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम, तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, सारे के सारे सब टास्क भी क्रिएट हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम लोग एक ही का लेके चल रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी द वेरी फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द एपिक। अंडर द एपिक क्रिएट द यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरी जैसे क्रिएट करा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा। वंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज डन, देन मूव टूवर्ड्स द सब टास्क। वंस सब टास्क इज फिनिश, अब क्या करेंगे? सब टास्क असाइन भी तो होंगे। सब टास्क असाइन भी तो होंगे। ठीक है, असाइन करने के लिए क्या करोगे? ये सब चीज़ हम लोग पहले वाली क्लास में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ, अब हम लोग किस तरीके से कैसे असाइन करेंगे? वी हैड ए डिटेल डिस्कशन वन ऑफ द टेक्निक। कौन सी टेक्निक है वो?
साइड में असाइन ही आ रहा है, असाइन टू मी भी कर सकते हैं और जिसको असाइन करना है उसको भी कर सकते हैं। पहले असाइन करोगी कि पहले कुछ और करोगे? ठीक है, एक बार मैं बाहर आ जाता हूँ, लेट्स सपोज मैं यूज़र स्टोरी पे आ जाता हूँ, ठीक है? आया था नहीं कोई? हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्या ना रखिए उधर चांद के बारे में क्या बात होगा? करो। बारे में जब बात करें दीदी दीदी थोड़ा बाहर बात नहीं करो होना ना। बाहर नहीं होना अंदर ही होना। 1 सेकंड। गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ। आई वाज सेइंग कि मतलब जैसे मैंने जीरा पे ऑलरेडी ऐसे यूजर स्टोरीज पे काम किया है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रोसेस। हम तो जो भी बनाते हैं उसमें सब कुछ एक साथ जो आई लाइन बाय मैं तो अपडेट कर देती थी। ठीक है, वो भी सही है, वो भी मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को। कोई भी बिजनेस एनालिस्ट कैसे भी कर लेता है, बट एक प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। करने के लिए आप बिल्कुल कर लो, यहाँ पे असाइन ही कर दो, स्टोरी पॉइंट्स मेंशन कर लो, नो प्रॉब्लम। बट वी आर फॉलोइंग द स्क्रम। अब स्क्रम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एक मेजर फैक्टर है हम लोगों के पास, ठीक है? वी कैन नॉट डायरेक्टली क्रिएट द यूज़र स्टोरी विदाउट द एपिक, है ना? तो सबसे पहले बात हम लोग एपिक क्रिएट कर रहे हैं, फिर हमने स्टोरी क्रिएट्स करी। अब बिजनेस एनालिस्ट का काम ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर बिजनेस एनालिस्ट प्रॉपर और ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में नहीं इन्वॉल्व है, अगर उसको हेल्प लेनी पड़ रही है किसी से, तो फिर वो आगे मूव करेगा, नहीं है तो उसका यहीं पे काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस में, कहीं की जगह नहीं होता, कहीं की जगह पूरा होता है, कहीं की जगह पूरा ही करना पड़ता है, ठीक है? तो एक बार स्टोरी हम लोगों ने क्रिएट कर ली, तो अब स्टोरी के बाद का जो फेज़ है वो क्या होगा, वो फेज़ वो ही मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। To create the sprint. अभी कैसे स्प्रिंट क्रिएट कर दोगे आप? अभी तो आपके टास्क ही, यूज़र स्टोरी ही रेडी नहीं है। After subtask, we create the sprint, right? हाउ? सब टास्क ऑलरेडी डन। What are the scrum ceremonies? Can anyone tell me? स्क्रम सेरेमनीज क्या है? कौन कौन सी स्क्रम सेरेमनीज हैं? बताओ भाई, स्क्रम सेरेमनीज कौन कौन सी हैं? What are the types of scrum ceremonies? Sprint planning, daily stand up, retrospective, backlog refinement. डेली स्टैंड अप यहाँ पे आप करोगे परफॉर्म? नहीं परफॉर्म करने वाले अभी तो। रेट्रो करोगे? Yeah, retrospective. नहीं करोगे रेट्रो, बिकॉज स्प्रिंट इज नॉट कंप्लीटेड येट। Review. कैसे रिव्यू करोगे? Sprint planning. स्प्रिंट प्लानिंग करोगे। द नेक्स्ट फेज इज स्प्रिंट प्लानिंग। और स्प्रिंट प्लानिंग में क्या करोगे? What we will be doing in this sprint, we will define. What needs to be done? Story point estimation. स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन किसके साथ करोगे? स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन Developer team के साथ. Delivered, like the work we are going to do, what will be delivered in this time box. Like sprint is like a time box. So what will be delivered in this time box is. Sprint is just like a time box, that is different thing. But in the sprint planning, what you as a business analyst with the development team, क्या करने वाले हो आप, वो मुझे बताओ। अभी we already have 4 user stories. That's what I'm saying. What will be delivered? That's what we plan in the sprint. What will be delivered in this sprint, कैसे and करोगे? like what will be delivered in the next sprint, and how it will be complete. Like process of like work breakdown structure. We break down this work, and then in sprint planning, we define in what sprint what work will be done. ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन अभी भी सेम ही है कि वी हैव 4 यूज़र स्टोरी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ सब लोगों से। हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्क्रम पढ़ा है गाइस, एक एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है?
इन यूज़र स्टोरी को कंप्लीट कौन करेगा? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दीज यूज़र स्टोरीज? डेवलपर ना, डेवलपर ही करेगा, कोई और करेगा? Developer. डेवलपर ही करेगा। We will assign these user stories to respective team members. टीम मेंबर्स, ठीक है, बट बिफोर असाइनिंग द थिंग्स वी हैव टू टेक केयर अबाउट द आवर्स एस्टिमेशन। आवर्स एस्टिमेशन कहाँ पे गए सब लोगों के? यूज़र रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में कितने घंटे लगेंगे, वो कौन बताएगा मुझे? Project manager or scrum master. कैसे बताएंगे, किसकी हेल्प से बताएंगे? डेवलपर टीम की हेल्प से। डेवलपर की हेल्प से। और डेवलपर किसकी हेल्प से मुझे बताएंगे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आई नीड 5 स्टोरी पॉइंट और 3 स्टोरी पॉइंट और 10 स्टोरी पॉइंट? हाँ, फैब्रिक की सीरीज की हेल्प से हम लाइक स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स को फैब्रिक की सीरीज के अकॉर्डिंग स्टोरी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वो फिबोनाची सीरीज या नंबर ऑफ आवर्स कैसे आएंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज दैट यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट और इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 4 डेवलपर्स आर देयर, है ना, एंड इन फ्रंट ऑफ 4 डेवलपर्स a user story is there. We estimate the team velocity. नहीं, जो चीज़ मैं सुनना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ किसी से भी। Relative estimation. रिलेटिव एस्टिमेशन, ठीक है, रिलेटिव एस्टिमेशन, और बट रिलेटिव एस्टिमेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर। लेट्स सपोज दैट फ्रेशर डेवलपर, तो हाउ द फ्रेशर डेवलपर विल गिव यू द स्टोरी पॉइंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ रिलेटिव? उसने तो कुछ करा ही नहीं पीछे। व्हाट इज प्लानिंग पोकर मेथड? प्लानिंग पोकर मेथड क्या होता है? Where team estimates subtask. टीम एस्टिमेट सब टास्क। और अच्छा, लेट्स सपोज दैट मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन को करने के लिए मैं यहाँ पे 5 स्टोरी पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, 5 हो गया। आया कहाँ से 5? On the basis of previous experience in the other projects. नहीं, देखो 2 सिनेरियो है। द वेरी फर्स्ट सिनेरियो इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस डेवलपर। इफ यू विल आस्क अबाउट हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस यूजर रजिस्ट्रेशन, बैक एंड फ्रंट एंड जो भी XYZ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज और प्रीवियस एक्सपीरियंस ही और शी विल टेल यू अबाउट द एस्टिमेशन कि हाँ मुझे इसको कंप्लीट करने में 5 या 6 या 7 स्टोरी पॉइंट जो भी XYZ लगेंगे वो लगेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर 3-4 डेवलपर हैं, पहला सिनेरियो इज ओनली फॉर वन रिसोर्स। इफ यू हैव ओनली वन रिसोर्स देन यू आर गुड टू गो, नो प्रॉब्लम। देयर इज अ नॉट एनी टेक्निक कि वो टेक्निक आप यूज़ करो। बट अगर मेरे पास 6-7 डेवलपर हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, उन 6-7 डेवलपर्स के लिए मैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के सामने रख रहा हूँ कि दिस इज़ द टिकट एंड मुझे आप बताओ हाउ यू गाइज विल टेक टू कंप्लीट दिस यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे मैं कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को करूँगा। ऑल दो दिस इज़ नॉट द बिजनेस एनालिस्ट टास्क, बट मैं फिर भी एक आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहे, ताकि बाद में कंपनी में जाने के बाद आपको ये सुनने को मिले कि अच्छा प्लानिंग पोकर भी कुछ होता है, तो ये आपको ना लगे कि हाँ आप प्लानिंग पोकर भी कुछ होता है क्या। तो वी ऑलरेडी हैड ए डिस्कशन ऑन द प्लानिंग पोकर, कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। देन वंस द प्लानिंग पोकर मेथड कंप्लीट, उसके बाद स्क्रम मास्टर जो है वो अनाउंस करता है। क्या अनाउंस करता है? स्टोरी पॉइंट्स को अनाउंस करता है। दोबारा रिकॉर्डिंग देखना जाके स्क्रम वाली, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 स्टोरी पॉइंट्स चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन में कितने लिखे? 3 स्टोरी पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे डेवलपर की साइड से आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोई एस्टिमेशन नहीं दे सकते, बिजनेस एनालिस्ट कोई एस्टिमेशन नहीं दे सकता, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू द कोड।
ठीक है, डेवलपर्स नो अबाउट दैट थिंग्स, तो वही सारे के सारे एस्टिमेशन देंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे एस्टिमेशन हम लोग लिख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं 5 लिख लेता हूँ। एस्टिमेशन कंप्लीटेड, वंस एस्टिमेशन इज कंप्लीटेड एंड उसके बाद आप असाइन कर लो जिसको भी असाइन करना। लाइक मैं इसको ममता को असाइन कर रहा हूँ, देन रिचा को असाइन कर रहा हूँ, देन उसके बाद ये डेवलपमेंट टीम का काम होता है, हमारा इसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, पूरे के पूरे असाइन हो गए। इस चीज़ को, इस स्टेज को क्या कहेंगे? अभी इस स्टेज को क्या कहेंगे? Product backlog? नहीं, Product initiation. नहीं, आई थिंक हमारे अभी सब टास्क पेंडिंग है। सो मूव टूवर्ड द सब टास्क। लेट्स सपोज इसको इनको दे देते हैं एंड इनको दे देते हैं प्रायोरिटीज़। ठीक है, प्रायोरिटीज़ को ऐसे छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स मूव बैकवर्ड, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। इस स्टेज को क्या कहने वाले हैं? Sprint planning. Sprint planning is completed now. What is the next step? इसके बाद का स्टेप क्या है? हाँ, Execution. अभी स्प्रिंट कंप्लीट नहीं हुई है। DOR सुना है क्या किसी ने? What is DOR? Definition of The ready. definition of ready. तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्प्रिंट। ठीक है, सर इसको जीरो स्प्रिंट भी कह सकते हैं। जीरो स्प्रिंट इज करेक्ट कह सकते हैं, जीरो स्प्रिंट। ओके। ठीक है, यहाँ पे ये सारे का सारा काम डेवलपमेंट टीम का है, बिजनेस एनालिस्ट का। यहाँ पे अब कोई काम नहीं रह गया है। ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसको उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ठीक है, आफ्टर द प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? उसको टेक्निक Moscow. टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर, बट फ्रीक्वेंटली वी आर यूजिंग मॉस्को टेक्निक फॉर प्रायोरिटाइजेशन द टिकट। तो अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए ऑल टिकट आर प्रायोरिटाइज राइट नाउ। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी हमारी स्प्रिंट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्लिक ऑन दिस स्टार्ट स्प्रिंट। तो अभी देखो, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लिक ऑन दिस बोर्ड। तो जैसे बोर्ड पे क्लिक करोगे, यू विल सी नथिंग ओवर हियर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज स्प्रिंट इज नॉट स्टार्टेड येट। वंस स्प्रिंट इज स्टार्टेड तो यहाँ पे सारे के सारे टिकट्स आ जाएंगे। तो दोबारा पीछे जाओ बैकलॉग में, एंड बैकलॉग में जाने के बाद लेट्स सपोज स्टार्ट स्प्रिंट, क्लिक ऑन दिस स्टार्ट स्प्रिंट। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ड्यूरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द ड्यूरेशन। सम कंपनी फॉलो द कल्चर ऑफ 2 weeks ऑफ स्प्रिंट, सम 3 weeks, 4 weeks, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है, हम लोग 2 week का ले रहे हैं। स्प्रिंट गोल जो मर्जी करे वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या लिखे स्प्रिंट गोल? एनीवन सजेस्ट? बताओ भाई, स्प्रिंट गोल क्या लिख? कोई अभी बोल रहा था स्प्रिंट गोल के लिए। Creating login features. नहीं, स्प्रिंट गोल पूछ रहे हैं। स्प्रिंट गोल क्या होगा? व्हाट इज द गोल ऑफ दीज 2 weeks? इन 2 week का गोल क्या होगा हमारा? To complete all the ticket ना। Complete the user stories or the task we have like assigned. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा,
जीरा ऑलरेडी रीडायरेक्ट मी टू द बोर्ड पेज। तो भी आप यहाँ पे देखोगे बोर्ड पेज यहाँ पे आ गया। सो एज ए बिजनेस एनालिस्ट और एज ए डेवलपमेंट टीम, अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, द वेरी फर्स्ट कॉलम इज टू डू, सेकेंड कॉलम इज इन प्रोग्रेस, थर्ड कॉलम इज डन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मुझे इसको कस्टमाइज करना हो, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड यहाँ पे इन रिव्यू, यहाँ पे इन रिव्यू लिखूंगा एंड इन रिव्यू लिखने के बाद एक कॉलम और बना लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू टेस्टिंग। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू टेस्टिंग, और इसको उठा के डन में डाल देते हैं। इतना सबको समझ में आया? एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? No, sir. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, लेट सपोज दैट कि यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी टेस्टर्स हैं, वो लॉगिन करेंगे अपनी कंपनी में, लेट सपोज 9 बजे करें, 10 बजे करें। सो द वेरी फर्स्ट टास्क टू सी द बोर्ड, सबसे पहले वो अपने बोर्ड को देखेंगे। ठीक है, अब ऑल दो यहाँ पे सिर्फ खाली के खाली 4 टिकट्स हैं। जब आप कंपनी में जाओगे, रियल एनवायरनमेंट देखोगे, सो यू विल सी 100 और 200 टिकट्स आर देयर, बहुत सारे टिकट्स होंगे वहाँ पे। सो हाउ यू मैनेज योर ओन टिकट्स? सो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेगी के टिकट देखना चाहता हूँ कि नेगी के टिकट कितने हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, जैसे क्लिक करोगे तो हाँ, यहाँ पे नेगी का एक ही टिकट है, तो आज के लिए मुझे एक ही टिकट असाइन हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यू कैन ईजिली सी योर टिकट्स, आप अपने टिकट्स देख सकते हो। ठीक है, सो लेट सपोज कि आप पहले आए, पहले आने के बाद जैसे ये वाला टिकट जो है वो एमजी को असाइन है, तो एमजी ने क्या करा, इस पर काम करना स्टार्ट करा। सो जैसे वो काम करना स्टार्ट करेगा तो इसको उठा के सीधा यहाँ पे ड्रैग कर देगा, तो जैसे ही ड्रैग करेगा वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बोर्ड, ये पूरा का पूरा बोर्ड सब लोगों के साथ शेयर्ड है। सीटीओ के भी साथ शेयर्ड है, प्रोजेक्ट मैनेजर के भी साथ शेयर्ड है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स आर एबल टू सी दिस प्रोग्रेस के चल क्या रहा है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। ठीक, तो सेम एज इट इज़, जैसे ये आर है, तो इन्होंने अपना टिकट यहाँ पे लिखा, इन प्रोग्रेस में करा, काम करना स्टार्ट करा। सेम एज इट इज़ इन्होंने भी अपना काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, जैसे ही पूरा का पूरा टिकट एक बार डन हो जाता है, देन मूव टूवर्ड्स द टिकट इन द इन रिव्यू। तो इन रिव्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इन रिव्यू में यहाँ पे ड्रैग करोगे, और किसको इन रिव्यू करना है, तो जिसको भी इन रिव्यू करवाना है उसको सीधा यहाँ पे उसको असाइन कर दो कि आकाश को जो है ये टिकट अभी इन रिव्यू पे है। ठीक है, उससे पहले अगर टेस्टिंग करवाना है तो वो टेस्टिंग भी करवा सकते हो। वैसे तो टेस्टिंग ही पहले आता है, इन रिव्यू तो बाद में आता है, ये हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरे के पूरे टिकट जो हैं वो मूव ऑन होते रहते हैं यहाँ पे। इस तरीके से जो होते रहते हैं यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहते हैं। इस तरीके से किसको असाइन करना है उसको हम लोग यहाँ पे असाइन करते रहते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको असाइन कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग टिकट को असाइन करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे टिकट इन रिव्यू में है। बाय द एंड ऑफ द स्प्रिंट सबके सब टिकट जो हैं वो डन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डन में पहुँच जाते हैं। So as this is the Kanban board, right? हाँ, ठीक है, अभी यहाँ पे इफ़ यू क्लिक ऑन द कंप्लीट स्प्रिंट, तो कंप्लीट स्प्रिंट अभी होगी नहीं। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन। अगर किसी ने जीरा पे काम करा होगा सो वो उसको आंसर दे देगा, जिसने नहीं करा होगा वो नहीं दे पाएगा। अभी मैं यहाँ पे कंप्लीट स्प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरी स्प्रिंट कंप्लीट नहीं होगी।
क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार पढ़ो और मुझे बताओ सबके सब। Yes guys, what is the meaning of this line? I think we have not started working on the LMS 8 user story. What is LMS 8? LMS 8 is not the user story. Subtask, right? Subtask. So what is the meaning of this line? That subtask is not completed yet. Correct. Okay. So यहाँ पे click on this cancel. जैसे cancel पे click करोगे, and where is our subtask? Here. This is the symbol of subtask. यहाँ पे अगर आप symbol देख पा रहे हो, this is the symbol, parent child symbol. ठीक है, ट्री की फॉर्म में आपको दिखा रहा होगा. सो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, सो इंटरव्यूअर बेसिकली आस्क दीज आइकन्स एज वेल कि व्हाट इज़ द आइकन ऑफ एपिक, व्हाट इज़ द आइकन ऑफ यूजर स्टोरी, व्हाट इज़ द आइकन ऑफ सब टास्क या टास्क. तो किसी ने अगर जीरा पे बहुत अच्छे से काम कर रखा होगा, ही और शी विल एबल टू गिव द आंसर प्रॉपरली. जिसने नहीं कर रखा होगा वो वहीं पे स्टक हो जाएगा और वहीं पे इंटरव्यू को पता लग जाएगा कि हाँ इसने जो है वो काम नहीं करके आया है. ठीक है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन LMS 8. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइल्ड वर्क आइटम्स, द स्टेटस ऑफ ऑल दीज सब टास्क आर रिमेन्स टू डू. तो इनको क्या करना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे ऑल्दो आप इन रिव्यू कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, डन कर सकते हो. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे आप डन करोगे, मूव टूवर्ड्स, एक बार रिफ्रेश करो. और रिफ्रेश करने के बाद जस्ट कंप्लीट स्प्रिंट एंड यू आर गुड टू गो. द स्प्रिंट कंटेन्स 4 कंप्लीट वर्क आइटम्स, दैट्स ऑल ऑफ देम वेल डन. तो यहाँ पे सीधा कंप्लीट स्प्रिंट पे क्लिक कर दो. ठीक है. ये स्टेज क्या कहलाएगी, डेफिनेशन ऑफ डन. डेफिनेशन ऑफ डन. सो डेफिनेशन ऑफ डन अबाउट जितने भी हमारी यूजर स्टोरीज थी उनका सबका डेफिनेशन ऑफ डन हो चुका है. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज, अभी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, स्प्रिंट रिव्यू. sprint review. So as a business analyst or as a development team, once the sprint is over, you have to present what actually you did or your team did in front of client. आप उनको दिखाओगे कि आप लोगों ने क्या करा है पिछले 2 हफ्तों में. ठीक है. सो दैट इज नोन एज द स्प्रिंट रिव्यू. ठीक है. सो उसको हम लोग स्प्रिंट रिव्यू बोलते हैं. वहाँ पे इफ क्लाइंट फील दैट कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे बग आ गया, ये चीज़ ऐसे आ गया. सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू रिपोर्ट द ऑल थिंग्स इनटू द जीरा अगेन. ठीक है. तो जिस टिकट में बग आया है, जिस टिकट में देयर इज ए टेक्निकल ग्लिचेस, सो उसका डेफिनेशन ऑफ डन नहीं होगा, वो डेफिनेशन ऑफ डन नहीं कहला जाएगा. ठीक है. एंड वंस द स्प्रिंट रिव्यू इज ओवर, उसके बाद कौन सी स्टेज है, स्प्रिंट रिव्यू के बाद कौन सी स्टेज है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है. वो अभी बाद में देखेंगे, थोड़ा टेस्टिंग फेज में जब चलेंगे. तो अभी के लिए उसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा. स्प्रिंट रिव्यू के बाद क्या आता है, कौन सी सेरेमनी आती है, रेट्रोस्पेक्टिव. स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव. व्हाट एक्चुअली यू विल डू इन रेट्रो, क्या करोगे आप रेट्रो में, क्या करोगे आप लोग, व्हाट टू इम्प्रूव, What went well और what went wrong चेक करेंगे. well, what went wrong, and तीसरा भी तो है एक, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, दैट्स ऑल राइट, बट व्हाट अबाउट थर्ड. 3 क्वेश्चन पूछता है ना. What could be done? Improve. What could be done? What could be Improve. improved. What could we can do?
So what extra we can add? What can we improve? What can be improved? सो ये 3 क्वेश्चन प्लीज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि इंटरव्यू यही 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला है कि रेट्रो में हम लोग क्या करते हैं। प्लीज़ टेल मी अबाउट 3 क्वेश्चंस कि हम लोग अपने आप से क्या पूछते हैं। सो इस तरीके से आप लोग जीरा के अंदर अपनी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो इस पर्टिकुलर चीज़ की। ऑल्दो जीरा के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। जीरा इंटीग्रेशंस हो गया, जीरा के वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, वो अभी वहाँ पे नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट एपिक्स, हाउ टू क्रिएट यूजर स्टोरीज, हाउ टू क्रिएट टास्क, हाउ टू क्रिएट सब टास्क, हाउ टू असाइन एंड हाउ टू असाइन और हाउ टू रिपोर्ट द बग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जीरा के अंदर करते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। Akash, I do have one generic question. Yes. The developers, they like use Jira for the development also, or they do use any kind of another platform Another platform for what? for development? For development of softwares or what? Whatever the project we are working, I'm just asking, like they do totally depend the upon Jira the itself. company. That's totally depend upon the company, but 80 to 85% company you currently use Jira for the issue tracking. Because the development and the code is written there, no? That is why I'm asking. हाँ, वो जीरा यूज़ करते हैं, तब सब लोग जीरा यूज़ करते हैं। 80 to 85% कंपनीज ही जीरा यूज़ करते हैं। And are we going to cover this Confluence as well? हाँ, कॉन्फ्लुएंस इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट सिंपल है। क्लिक करो, Right. एंड क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक जो हमारा गूगल डॉक है, MS वर्ड है, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट ऑप्शन, पेज आ जाएगा यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट द बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, देन यू विल क्रिएट ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर वेरी इजीली, एंड उसको आप शेयर भी कर सकते हो। कॉपी लिंक करो और शेयर करो, ठीक है। बट कंपनी अगर ये कल्चर फॉलो कर रही है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। So, is there any AI option available in this Confluence? बहुत सारे हैं, Okay. बहुत सारे हैं, ठीक है। बट एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर IT टीम, ठीक है, कि IT टीम आपको क्या एक्सेस दे रही है, क्योंकि ग्लोबल एक्सेस तो उन्हीं के पास रहता है, Right. है ना। तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। सो कॉन्फ्लुएंस इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इंटरव्यू में बैठो तो आप बताओ कि आई नो ट्रेलो, आई नो जोहो, आई नो monday.com, आई नो जीरा ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग जीरा फॉर द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जो भी है XYZ, ठीक है। ताकि उनको पता रहे कि हाँ, यू नो अबाउट द टेस्ट ऑफ अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एज वेल, लाइक हमारा जोहो ट्रेलो जो हो गया। अलॉन्ग विद दैट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन उनको बताओ कि हम लोगों को कॉन्फ्लुएंस भी पता है, आई नो अबाउट कॉन्फ्लुएंस ऑल्सो, ठीक। और MS वर्ड और हमारा जो गूगल डॉक्स है वो तो ओल्ड स्कूल है, उसमें तो हम लोग क्रिएट करते ही हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? So, Akash, is there any like we use Power BI or Tableau for the chart, right, to create the charts? So, is there any like option of the like feature in Jira to create the charts? वो इंटीग्रेशन होता है, आप इंटीग्रेशन करवा सकते हो, कस्टमाइज करवा लो जीरा को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट फॉर द BI टूल्स तो अलग ही होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली क्रिएट द डैशबोर्ड एंड ऑल, बिकॉज जीरा बहुत डेटा को नहीं हैंडल कर पाएगा। लेट्स सपोज दैट इफ यू हैव 1 लाख रोज, तो 1 लाख रोज, आई थिंक दैट कि जीरा इज नॉट एबल टू हैंडल ऑल द रोज एंड टू क्रिएट द डैशबोर्ड। सो यू हैव टू लर्न पावर BI, यू हैव टू लर्न टैब्लो अबाउट दैट। अब वो भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को टैब्लो चाहिए या पावर BI चाहिए। So, is there any other project management tool available in the market which is like the competitor of Jira? हाँ, ट्रेलो हो गया, monday.com हो गया, जोहो हो गया, ये सारे कॉम्पिटिटर्स ही हैं। Okay.
बाकी और टूल्स भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, सब लोग अपने सास प्रोडक्ट बना रहे हैं। किसी को पता है व्हाट इज सास? SaaS? Software as service, the HRMS, we called it's a software as service. Okay. What is PaaS? PaaS? Platform as service. Platform as a service. RaaS? RaaS? RaaS. ठीक है, बहुत सारे Something related to RaaS हो गया, real estate. RaaS हो गया, IaaS हो गया, दुनिया भर की चीज़ें। कोई और क्वेश्चन किसी का अभी तक? Otherwise we can wrap up this session. So this is my first class. Just want to know how many classes had already done so I can cover up ASAP because I am not getting much. देखो यार, जिसकी भी पहली क्लास है ना, उनका ऑलरेडी बैच जो है वो क्लास 0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये वाली जो क्लासेस है वो बहुत आगे की चल रही है और ये पुराने बैचेस की क्लासेस चल रही है। सर फिर न्यू क्लास कब से स्टार्ट होगा फिर ये? न्यू क्लास आप लोगों को आई थिंक मैसेज आ जाएगा आपके पास ना, जब भी स्टार्ट होगा। क्योंकि कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं अभी इसमें तो। नहीं आएगा, वो ज़्यादा नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी, नहीं आएगा। वो बहुत बहुत बात की क्लासेस चल रही हैं अभी ना, वो नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है गाइस, तो न्यू क्लास की मैसेज आ जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, आपके पास न्यू क्लास का मैसेज आ जाएगा जब भी स्टार्ट हो। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। Thanks, Akash. Thank you, guys. Thank you, sir. Bye.